بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کلیم التحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو شکایات جو ہے وہ کس طرح درج کروا سکتے ہیں۔ مثال کے آپ کی ڈگری کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، پروویژنل سرٹیفکیٹ، ڈی ایم سی کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو ایشو نہیں ہو رہی تو اس کے لیے شکایات درج کروانی ہے، یا آپ کا ریپیئر کا مسئلہ ہے، آپ کے پیپر ری چیکنگ کا مسئلہ ہے، آپ کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کی درستگی کا معاملہ ہے، آپ کی ڈگری ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے، امتحانی سینٹر کے لیے آپ نے اپلائی کیا، اس کی تبدیلی ابھی نہیں ہوئی یا اس کے متعلق شکایت کروانی ہے، رول نمبر سلپ کا مسئلہ ہے، آپ نے کوئی ڈاک وغیرہ یا کوئی ریسیپٹ وغیرہ بھیجی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ کیسے شکایت درج کروائیں گے، رزلٹ آپ کا اپڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ کیسے کروائیں گے، کویشچن پیپر کا مسئلہ ہے، یو ایم سی کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ آپ ایل ایم ایس کا مسئلہ ہے، یعنی آگے ہی جو پورٹل ہے اس کا مسئلہ ہے، یا آپ کی ورکشاپ ریسورس پرسن کا مسئلہ ہے، ورکشاپ کوآرڈینیٹر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کسی پروگرام میں آپ کے ایڈمیشن کا مسئلہ آ رہا ہے، ٹرک لیول سے پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو کہ ایڈمیشن میں مسئلہ آ رہا ہے، یا آپ کی وہ کتابیں جو ہیں آپ کو نہیں بھیجی جا رہی، وہ ان کا مسئلہ ہے، فیس ریفنڈ کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اسائنمنٹ کے نمبر جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے، نہیں لگتے، یا آپ ورکشاپ کی اٹینڈنس کے معاملے میں آپ کے نمبر نہیں لگتے، یا آپ کو نمبر غلط دیے جاتے ہیں، یا ٹیوٹر کی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ کیسے جو ہے اپنے شکایات درج کروائیں تاکہ ان کا معاملہ جو ہے یا ان کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے این او سی ہے، فیس ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، بہت سارے جو بھی آپ کا معاملہ ہو ان کے لیے آپ اگر شکایات کرنا چاہیں، مدد لینا چاہیں تو وہ کیسے لیں گے تاکہ آپ کا وہ معاملہ جو ہے جلد سے جلد حل ہو سکے۔ یہاں پر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جن چیزوں کے لیے پہلے اپلائی کرنا ہوتی ہے وہ آپ پہلے اپلائی لازمی کریں، اپلائی کرنے کے بعد اگر ان کوئی جواب رسپانس وغیرہ نہیں آتا یا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ شکایت جو ہے درج کروا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کچھ چیزوں کی اپلائی ہوتی ہے وہ آپ اپلائی نہ کریں اور آپ ڈائریکٹ شکایت درج کروا دیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی ڈگری منگوانی ہے تو ڈگری منگوانے کا پروسیس میں سب سے پہلے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ پہلے اپلائی کریں گے، اس کے بعد پھر اگر آپ کا معاملہ ڈیٹ کے اندر حل نہیں ہوتا تو پھر آپ شکایت کروائیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ری چیکنگ کا معاملہ ہے، باکس ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے پہلے اپلائی کرنا ہو، پہلے آپ اپلائی کریں گے، پھر آپ کا معاملہ حل نہ ہو تو پھر آپ جو ہے یہ شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ آئیے کمپلین اپنی شکایات جو ہے درست طریقے سے جو ہے جمع کروائیں گے تاکہ جو بھی مسئلہ ہے جلد سے جلد حل ہو سکے۔ اگر آپ درست طریقے سے نہیں کروائیں گے تو تب بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر لوں کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ساتھ گھنٹی کا بٹن اس کو آل پہ لازمی پریس کیجیے گا۔ تو شکایات درست طریقے سے درج کروانے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرنیٹ سرچ براؤزر میں یا گوگل میں جو ہے اپنے سرچ کرنا ہے support.aiou.edu.pk، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے تو اس طرح جو ہے آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پر آپ کو مین دو آپشن نظر آ رہے ہیں، ویسے یہاں پر بہت ساری شکایات بھی ہیں، تو آپ نے یہاں سے جو ہے سبمٹ اے ٹکٹ یا کمپلینٹ اس بٹن کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ایک نئی سکرین جو ہے اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر ای میل لکھنی ہے، پھر اسی ای میل کو دوبارہ درج کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیٹیگری میں آپ نے وہ چیز منتخب کرنی ہے جس کا معاملہ آپ کا یا جس کے بارے آپ شکایت درج کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ساری دی گئی ہیں، خیال رکھیے آپ نے وہ درج کرنی ہے جو آپ کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کیٹیگری میں درج کروا دیں کمپلین تو وہ کمپلین کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایسی بعض کمپلین کی گئی تھی جن کی کیٹیگری یعنی ان کا قسم جو تھی کچھ اور تھی،
उनकी सुनवाई नहीं हुई, यानी उन्होंने देखा ही नहीं, उनका कोई रिस्पांस वगैरह भी नहीं मिला। दुरुस्त तरीके से करवाने के फौरन बाद एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी कंप्लेंट जो है जल्द से जल्द उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और दूसरा डिपार्टमेंट के लिए भी आसानी रहेगी कि वो आपको ढूंढने में या आपकी कंप्लेंट अमल दरामद करने में थोड़ा जल्दी करेंगे। तो आपने दुरुस्त तरीके से करवानी है। अगर आप खुद कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं, तो फिर आप खुद मुंतखब करिए या फिर किसी जानने वाले से जो है करवा सकते हैं। इसके बाद आगे आती है प्योरिटी। अब प्योरिटी में आप यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लो है, मीडियम है, हाई है। तो अगर आपकी डेट नज़दीक है, यानी जिस चीज़ के बारे आप कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं उसके 1 हफ्ता या इससे कम दिन जो हैं आपको वो चीज़ दुरुस्त करवानी है या वो चीज़ चाहिए, तो फिर आप हाई पे रखिए। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा डिले है तो फिर मतलब 15-20 दिन हैं तो फिर आप लो पे रख सकते हैं। अगर 8-10 दिन हैं तो फिर आप मीडियम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्योरिटी आप इसके मुताबिक इंदराज कीजिए। इसके बाद अपने वालिद का नाम लिखिए। फिर आपने अपना आईडी जो है, स्टूडेंट आईडी अगर आपको मिला हुआ है तो लिख लीजिए। इसके बाद प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम का आपका मामला है। इसके बाद कोर्स कोड है, अगर दर्ज करने की ज़रूरत हो तो कर दीजिए। फीस अमाउंट सबमिटेड या इसके बारे में मालूमात देना हो या मालूमात इंदराज करनी हो तो आप कर सकते हैं। चलान है, चलान के मुतालिक मालूमात देनी हो तो दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड जो है ये आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है, क्योंकि इसी के ज़रिए ही आपकी जो है वो डेटा ट्रैकिंग या आपको जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद सेमेस्टर है, ये सेमेस्टर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जिस सेमेस्टर का वो मामला है। इसके बाद मोबाइल नंबर भी लाजमी लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपने उन्वान लिखना है सब्जेक्ट ऑप्शन में, यानी जो भी आपका मामला है, और वो पैगाम यहाँ पर आपने बेहतरीन अंदाज से लिखना है कि पढ़ने वाले को आपका मामला समझ आ सके। यानी ऐसा ना हो कि आप बहुत लंबी लंबी बातें बयान कर दें, उनको समझ ही ना आए कि ये क्या कह रहा है। तो आपने यहाँ पर तसर और जामे, यानी ऐसी बातें जो उनको समझ आए या जो आप कहना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फजूल बातें नहीं लिखनी, दुरुस्त और मुख्तसर और मुकम्मल मालूमात जो आप चाहते हैं, ये जो आप उनको बताना चाहते हैं, तो वो आपने लिखना है ताकि उनको पढ़ने में भी आसानी हो, उनको समझने में भी, और वो उस पर अमल दरामद भी कर सके। अगर आप फजूल बातें लिखेंगे तो फिर जो है एक तो वो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, और फिर इसके बाद आपका मामला हल नहीं होना। तो लिहाजा आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप खुद जो है अच्छे जामे तरीके दर्ज कर सकते हैं तो कर लीजिए, या फिर किसी से करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी मालूमात भेजकर अप्लाई करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। और इसके बाद आपने अपना शहर जो है उसका नाम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जो इसके बाद आप तारीख लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि किस तारीख तक जो है मेरा मामला हो, कब से आप दर्ज करवा रहे हैं, ये आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। या फिर अगर हवाला देना हो किसी तारीख का तो फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद ट्यूटर का नाम है, अगर ट्यूटर के मुतालिक आपका कोई मसला है तो फिर आप यहाँ पर ट्यूटर का नाम जो है वो इंदराज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर कोई फाइल इसके साथ हवाले के तौर पर या सबूत के तौर पर पेश करना हो तो फिर यहाँ पर आप वो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। उसके लिए चूज ए फाइल करेंगे और वो फाइल ऐड हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर ये रिकैप्चा दिया गया है स्पैम के लिए, तो यहाँ पर आपने ये नंबर देख लेने हैं, इनको प्लस दिया गया है तो इसको आपने जमा करके यहाँ पर लिख देना है कि कितने बनते हैं। उसके बाद फिर आपने सबमिट टिकट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो ही आप सबमिट टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी। उसके ऊपर आपकी इस तरह जो है टिकट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि वही टिकट के ज़रिए आप उसी आईडी के ज़रिए दोबारा जो है अपनी टिकट जो है चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए जो है आप उसको संभाल के रखें। इसके बाद नीचे उसमें वेव का ऑप्शन भी होगा, एक मोर
वेव का या इसी तरह आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने जो है एक फुल स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने जो दर्ज किया होगा, यानी नाम, बल्दियत, जो भी आपने डेटा दर्ज किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें आपने जमा करवाई हैं वो वही दुरुस्त तरीके से हैं या कोई गलती वगैरह तो नहीं है, तो वो आपने देख लेना है। फिर उसको आप चाहें तो सेव कर लें, उसका प्रिंट ले लें, वो इस तरह प्रिंट आ जाएगा, आप उसको संभाल के रख सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपका जो टिकट आईडी होगा वो भी दर्ज होगा, टिकट नंबर भी होगा, तारीख डेट भी होगी, तमाम मालूमात जो है उसके ऊपर दर्ज होगी। तो अब इसके बाद आपने चेक कैसे करना है, आपने वही टिकट नंबर जो है उसको कॉपी कर लेना है या फिर आप उसको लिख भी सकते हैं। उसके लिए फिर आपने support.aiuu.edu.pk जहाँ से आपने सब दर्ज करवाई थी सबमिट टिकट, वहीं पर आपने आना है, उसी सफ़े पर। यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हो सकता है आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाए, तो आपने कंटिन्यू टू साइट जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने वो वाला ट्रैकिंग नंबर जो है वो आपने लिख कर जो है वेव ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करना है, या अगर आप को जो है CMS नहीं मिला तो फिर आप रोल नंबर के जरिए अप्लाई देख सकते। वेब टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी तमाम डिटेल जो है वो दर्ज की गई होगी। जिस तरह आपने जब सबमिट की थी तो आपके सामने नजर आई थी, वैसे ही आपको नजर आ जाएगी। तो इसी तरह आपने चेक करते रहना है। चेक करने के बाद जो है अगर आपका मामला हल हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है आपके सामने एक जो टिकट स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर आपको रिजॉल्व नजर आएगा। उसके बाद जो है समझो आपका मामला जो है हल हो गया। अगर वो कोई आपको मैसेज करते हैं, यानी वो आपसे आपने जो इंदराज किया उसमें कोई चीज़ उनको मज़ीद चाहिए थी या उसमें कोई मिसिंग थी या उसमें कोई मसाइल थे, अगर वो चाहते हैं या आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो आपको ऊपर जो है रिप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये रिप्लाई किया गया है। जबकि हमारी जो है ये नीचे आ गई जो आपने दर्ज करवाई थी, और जो उन्होंने रिप्लाई किया वो यहाँ पर ये दर्ज है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होगा या जो वो आपको कहना चाहेंगे वो आपको बता देंगे। अगर मज़ीद आपसे कोई चीज़ वो चाहते हैं कि हमें वो सेंड करें, जैसा कि बाज़ औक़ात को डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है, उनको चाहिए होता है सबूत के तौर पर, तो फिर उसके लिए आप नीचे जाएंगे। नीचे आपको वो अटैचमेंट के जैसा कि पहले अप्लाई करते वक्त, तो फिर वहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। अगर कोई सवाल और जवाब आपसे करते हैं, वो आपसे मालूमात लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे बॉक्स होगा, बॉक्स में आप वैसे ही दर्ज कर सकते हैं जैसे कि पहले आपने मैसेज दर्ज कर दिया था, तो फिर आप उनको वहाँ पे दे सकते हैं। तो याद रखें आपने दुरुस्त तरीके से जो है, तो ये इस तरह रिप्लाई का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर मैसेज करना है, यहाँ पर कोई चीज़ अटैच करनी हो तो फिर सबमिट रिप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि आप जामे और बेहतरीन अंदाज में उनको दरख्वास्त शिकायत दर्ज करिए ताकि आपकी शिकायत पे जल्द से जल्द दरामद हो सके। अगर आप सही मालूमात नहीं देंगे या सही मालूमात नहीं बता पाएंगे तो फिर आपका मसला बनेगा और आपके मसले को हल नहीं करेंगे। तो लिहाजा आपने अच्छे तरीके से जिस डिपार्टमेंट हवाले से आपको मसला है उसी डिपार्टमेंट में उसी हिसाब से आपने जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको मसला है, उनको ऐसी बात बताएं कि आप उनको समझा सकें। अगर आप खुद जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप खुद जो है एक कंप्लेन दर्ज कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी जानने वाले से, अप्लाई करने वाले से तसल्ली से करवा सकते हैं। चाहें तो आप हमसे भी राब्ता करके तसल्ली बख्श आपकी कंप्लेन जो है दर्ज होगी ताकि उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आए, क्योंकि ये कुछ ही दिनों पहले की थी तो तकरीबन 1-2 दिन के बाद उनका जवाब जो है आ गया था और वो मसला भी हल कर दिया गया था। तो इस तरह आप अपना मसला जो है वो हल करवा सकते हैं। पहले अप्लाई लाजमी कीजिए जिन चीज़ों की अप्लाई करनी है, इसके बाद फिर आप उन मसाइल के अगर हल नहीं हो रहे तो फिर आप शिकायत दर्ज लाजमी करवाइएगा। ज़्यादा जो है शिकायत मत दर्ज करवाइए, एक ही तसल्ली बख्श अप्लाई कीजिए और उसका वेट कीजिए।
कम से कम 1 हफ्ता तक आप उसका वेट कीजिए। फिर अगर वो उस मामले को वो हल नहीं करते तो फिर अपनी शिकायत को देखिए कि आपने क्या दुरुस्त करवाई है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर दुरुस्त है तो फिर आप दोबारा उसके रिप्लाई में जाकर जो है बात लिख दीजिए कि मेरा ये मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, अपनी वजह बता सकते हैं फिर उनको और रिप्लाई कर दीजिए। ये तरीका है शिकायत दर्ज करवाने का। उम्मीद है आपने काफी मदद हासिल की होगी कि किस तरह शिकायत दर्ज करते हैं और फिर उसको चेक कैसे करते हैं, और अगर वो हल हो जाती है तो आपको कैसे मालूम होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मददगार होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।